Hello 10th class, how are you? I hope all of you fine. Our chapter is 9 Coordinate Geometry. In the last video, we talk about graph, coordinate, scale, etc. And in the last video, in the last point, we discuss about, I will tell you the formula of distance, how we find out the distance formula. We discussed this, b distance is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. It's clear, it's the formula of distance. Our example number 3, find the distance between the points. Between the points it means 2, 3, 5, 6. 2, 3 it means x1, y1. In the last video I will tell you कि first value x, second value y, and its x2 value y. x2 value is 5, x1 value is 2 का whole square, y2 value is 6, 5 x2 is 3 का whole square plus 3 का whole square, 3 का square 9, 3 का square 9, 9 and 9 18, and the value of root 18 is 2 multiple 9 and 9 is 3 root 2. So what is the answer of root 18 is 3 root 2. So what is the distance between these points? 3 root 2. So we easily find out the distance between the two points. Now we solve out the question number in the 9.1. Question number 6, first and second. Here we find out the distance some other method. Look at this. Suppose that it's x2, it's x1, it's y1, and it's x2 and it's y1. जो मैंने आपको पहले बताया आपको वैसे ही मेथड से करना है. फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं सर अगर इस मेथड से करें, देखिए इस मेथड से करें. x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 2 minus 5, y2 की वैल्यू 3 minus 6 का होल स्क्वायर, 2 minus 5 का स्क्वायर minus 3 का स्क्वायर प्लस minus 3 का स्क्वायर. You know very well minus 3 का square is 9, it's 9, 9 and 9 18 is 3 root 2. So it's depend on you कि आप वैल्यू जो है x1 ले रहे हैं या y1 ले रहे हैं या x2 ले रहे हैं या y2 ले रहे हैं. I hope it's clear. Now we are going to 9.1. Question number 6, first and second. First and second. 6, question number 6, the first. Points are minus 6 are minus 1 minus 1. So minus 6 are minus 1 minus 1. So x1 y1 x2 y2. Value of x2 is minus 1 minus x1 value is minus 6 whole square plus y2 value is minus 5 and y1 value is 7. minus 1 plus का 6 minus minus plus whole square minus 12 whole square
6 में से 1 माइनस करने पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 225 प्लस 144 is 169 and the value of 169 is 30. Easily find out the square root and square. In the video library, in the playlist of the Raghunath School, we find out the one chapter square and square root of class 8. So आप वहां जाकर उस चैप्टर को देखेंगे और समझेंगे कि इजीली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ इस क्लियर, आंसर इज 30. आंसर इज 30. नाउ 6 सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 का सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखिए का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? -1 -1 8 minus 2 8 minus x2 8 x1 -1 y2 -2 y1 -2 y2 कितना है? -1 है यहाँ, -1 इस होल स्क्वायर 8 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस का 1 का होल स्क्वायर 8 + 9 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 and -1 का स्क्वायर is 1. It's root 82. Answer is square root 82. तो so distance is root 82. 6 का थर्ड जो है, फर्स्टली अपने फर्स्ट सोल्व करा 6 का, उसके बाद अपने 6 का सेकंड सोल्व करा. मैं आपको कुछ ऐसे ही एग्जांपल सोल्व करवा देता हूं, उसके बाद अपन कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट आउट करेंगे? अपन शॉर्ट आउट करेंगे 6 का थर्ड नंबर जो क्वेश्चन होगा वो आने वाले वीडियो में या इसी वीडियो में अपन 6 का थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसको शॉर्ट आउट करेंगे. अब मैं बात करूंगा एग्जांपल नंबर 4. Example number 4. If distance between points x3 and x3 and 5 7 is 5, then find out value of x. देखिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. सिंपल सा मेथड, आपने वो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है. x3 5 7 and distance is 5. It's x1 y1, it's x2 y2. इसलिए डिस्टेंस के नीचे डिस्टेंस की वैल्यू x2 value is 5, x1 value is 1, x1 value is x, y2 value is 7 and y2 value is 7 and y1 value is 2. आप बोथ साइड होल स्क्वायर रूट कर देंगे. बोथ साइड क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे. बोथ साइड आपने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया. इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. 5 का स्क्वायर 25, तो इधर आपके पास क्या करेगा? 5 - x स्क्वायर 7 कर सकते हैं, माइनस के बाद 4 का स्क्वायर. नाउ इट्स क्लियर.
देखिए स्क्वायर रूट इसलिए कैसे डाउट किया कि इधर स्क्वायर रूट नहीं था, अगर इधर स्क्वायर रूट रहेगा तो अपन इसे आगे सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। 5 माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। 5 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आप a माइनस b के होल स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 इक्वल में 20। इस 25 को आप उधर साइन करेंगे, पहले आपने x स्क्वायर लिखा माइनस 10x लिखा प्लस का 16 लिखा, 25 का 25 कैंसिल आउट इधर आ गया 0। क्लियर? इधर कितना आ गया 0। x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, फैक्टराइज दिस। अपन इसको जैसे फैक्टराइज करेंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, अपने पास x की वैल्यू निकल के आएगी। आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर है। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 x स्क्वायर के कोएफिशिएंट का और कांस्टेंट का इस तरीके से मल्टीपल करना है कि प्लस माइनस करने में 10 आ जाए। 1 को 16 से मल्टीपल करने में 16 एंड फैक्टर ऑफ 16 116 एंड 28 का प्लस कितना होता है 10x। 28 का प्लस कितना होता है 10x। सो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x प्लस 16। यहां मैंने सिर्फ 10x सॉल्व किया, माइनस को बाहर का बाहर ही रखा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस का 16 इक्वल टू 0, राइट। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, यहां से कॉमन आ रहा है x माइनस 8, यहां से कॉमन आ रहा है माइनस 2, सो हियर x माइनस 8, x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए पहले क्या होता है, आई होप इतना क्लियर है। सिर्फ फैक्टर कर रहे हैं जो आपने 8 9 10 क्लास में सीखे हैं। अगर किसी को फैक्टर नहीं आ रहे हैं तो मेरा 9th क्लास में एक प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है फैक्टर का, आप वहां जाके जरूर देखें फैक्टर्स। x माइनस 2 x माइनस 8 इक्वल टू 0। फर्स्टली आपने x माइनस 8 को इधर भेजा तो ये क्या होगा 0 और x माइनस 8, सो इसकी वैल्यू है x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी है। आप कभी क्या करते हैं, ये सीधा क्वेश्चन है, ये दो स्टेप चाहिए। सो आपको पता होना चाहिए कि x माइनस 2 इक्वल यहां से कैसे आया 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0 कहां से आया, ये आपको पता होना चाहिए। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 and 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? वैल्यू ऑफ x इज 2 and 8। आई होप इट्स क्लियर। इस तरीके से होता है कि x माइनस 2 पहले आप 0 के इक्वल रखेंगे, फिर x माइनस 8 जो होगा वो आप इसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। I hope it's clear. Now we are going example number 5. अब अपन जो अपना example number 5 है इसको सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए example number 5 आपसे क्या है, prove that points minus 2 minus 3 minus 1 and 1 5 minus 2 4 and minus 4 and minus 4 are vertices of a rectangle are ये क्वेश्चन आपके मैथ एग्जाम में 3 मार्क्स का कंफर्म आएगा, ऐसा ही एक क्वेश्चन
आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरीके की क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे, रेक्टेंगल का डायग्राम। वर्टिसेस के पॉइंट दे रखे हैं -2 और -1 -1 and 5 and -2, 5 and -2, 5 and -2 and 4 -2, 4 -2। और आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो है वो क्या है, रेक्टेंगल। ये जो है वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। सो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आर अपोजिट साइड्स इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री, और डायगोनल्स आर इक्वल। ये कुछ प्रॉपर्टी होती है जो अपने को पता होना चाहिए। इट मींस सबसे पहले अपन मान लीजिए कि क्या करेंगे कि PQ की क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। PQ की जो डिस्टेंस होगी इसके इक्वल आनी चाहिए SR है, PS की डिस्टेंस होगी इसके इक्वल आनी चाहिए QR के, और फिर अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, डायगोनल्स फाइंड आउट करेंगे कि PR जो है इसके इक्वल होगा SP। अगर अपन ये कह रहे हैं कि ये तीनों की जो वैल्यू आ रही है वो अगर इक्वल है तो PQRS क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। तो फर्स्टली मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, PQ की, PQ फॉर्मूला x2 - x2 प्लस y2 - y2, डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला। पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं PQ। सो -2 is x2, x1 y1, x2 y2, -2 -1 and value of x2 is x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू -2 प्लस y2 की वैल्यू 1 एंड y1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू 1 एंड y1 की वैल्यू -1, -1 प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इनको शॉर्ट आउट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4, सो डिस्टेंस कितनी आएगी, 5। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस, डिस्टेंस ऑफ PQ is √5, डिस्टेंस ऑफ PQ is √5। now we find out the distance of SR, now we find out the distance of SR। SR, find out the distance of SR। x1 is 4, y1 is 5, sorry -4, x2 is 5 and y2 is -2, x2 is 5, x1 is 4, y2 is -2, y2 is -2 and y1 is 4। फाइव माइनस 4 is 1 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस का 4 का होल स्क्वायर। 4 में से आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, सो वैल्यू इज √5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √5? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SR वैल्यू इज √5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SR इज √5। सो बोथ साइड्स आर इक्वल, एक पेयर जो है अपना इक्वल आ चुका है। अब अगर बात करेंगे दूसरे पेयर की कि इसको अपन इक्वल कैसे करते हैं, सेम मेथड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। नाउ पॉइंट इज PS, -2 -1, 4 -2,
So x2 value is 4. x2 value is 4. x1 value is minus 2. y2 value is minus 4. And y1 value is minus 2. I hope it's clear. y4 plus 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर. सिंपल सा मेथड माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस. 4 to 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर. 36 plus 9 is root 45 and root 45 is 5 multiple 9 and 9 value is 3 root 5. So what is the value of SP? SP value is 3 root 5. What is the value of SP? SP value is 3 root 5. I hope इतना आप लोगों को समझ में आया है. SP value is 3 root 5. Now we find out the value of QR. Q and R. Now we find out the value of Q and R. Q value is minus 1, 1, 5 and minus k. X2 value is 5. X1 is value is minus 1. Whole square. Y2 value is minus 2. And Y1 value is 1. 5 plus 1 का whole square plus minus 3 का whole square. 5 1 6 का whole square plus minus 3 का whole square. 6 का whole square 36 plus 9 is root 5 45 and root 45 value is 3 root 5. 3 root 5. इतना होने के बाद आप तो सोच रहे होंगे सर इतने पे भी इतना फिनिश कर सकते हैं, बट बेटा यहाँ इतने फिनिश नहीं कर सकते क्योंकि जो अपन ने प्रूफ करा है वो अपना पैरेललोग्राम पे भी अपन देख सकते हैं. सो अपन फाइंड आउट क्या करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डायगोनल्स. अब अपन किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? डायगोनल्स की जो वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट करेंगे कि डायगोनल्स की वैल्यू क्या है. देखिए SQ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, S की वैल्यू हो गई 4 minus 4 and Q की वैल्यू minus 1. X2 value is minus 1. X1 value is minus 4 का whole square plus 5. Y2 value is 1 and Y1 value is minus 4. I can check it. Now X2 value is minus 1 and X1 is right here and Y1 value is minus 4. Minus 5 का whole square plus 1 plus 4 का whole square 25. 4 and 5 का whole square 25. Answer is root 25. root 50 और root 50 को आप क्या लिख सकते हो? 2 multiple 25 और root 25 की वैल्यू होती है 5 root 2. सो डायगोनल इज जस्ट कितना आया? 5 root 2. 5 root 2. Now we find out the diagonal of PR. Now we find out the diagonal of PR. PR. X1 value is minus 2, minus 1, 5, minus 2. X2 value is 5, X1 value is minus 2 का whole square plus Y2 value is minus 2 and Y1 value is minus 2.
5 plus 2 is 7 minus 2 plus का 1 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 minus 2 का स्क्वायर 50 is root 50 and the value is 5. We do that root 50 is 5 into 2 is 5 into 2. So we can say that this point are of vertex of a rectangle. जो आपको पॉइंट दिए गए हैं वो किस चीज के पॉइंट है, एक वर्टिसेस के पॉइंट है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस है जो आपको सेल्फ शॉर्ट आउट करने हैं, जो आपको सेल्फ शॉर्ट आउट करने हैं। तो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको सेल्फ शॉर्ट आउट करना है। 9.1 का 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपको सेल्फ शॉर्ट आउट करना है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्क्वायर दे रखा है, आपको प्रूफ करने हैं। इसी तरीके से आपको पॉइंट लगाने हैं और इसी तरीके से आपको साइड्स की और डायगोनल्स की जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता चल जाएगा कि कोई स्क्वायर है या स्क्वायर नहीं है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ इन द चैप्टर 6 के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन अपन ने शॉर्ट आउट करने हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है मैं आपको उसमें हिंट दे देता हूं, आप लोग उसे शॉर्ट आउट कीजिएगा। मैं हिंट दे देता हूं, आप लोग उसे शॉर्ट आउट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें मैं आपको हिंट दे देता हूं, डायग्राम बना के उसको आपको सेल्फ शॉर्ट आउट करना है। सेवन नंबर क्वेश्चन है प्रूव दैट द पॉइंट्स आर राइट एंगल्स ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल 2 minus 2 A value is 2 minus 2, B value is minus 2 and 1 and C value is 5 and 2। अगर आप चाहें तो इसे ग्राफ में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले आप क्या करेंगे, AB के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, AC के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे एंड BC के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या देखेंगे कि जो BC का डिस्टेंस आपके पास आएगा √50, आपको फाइंड आउट करना है। मैं सिर्फ आपको सिंबल बता रहा हूं, उसकी डिस्टेंस आएगी √25, इसकी डिस्टेंस आएगी √25। अपने को फॉर्मूला लगाना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर √50 का स्क्वायर इक्वल टू √25 का स्क्वायर प्लस √25 का स्क्वायर। ये हो गया 50, ये इतना है 45 प्लस 25 और इन दोनों का प्लस आपके पास कितना निकल गया है 50। लेफ्ट हैंड साइड में 50 एंड राइट हैंड साइड में भी 50। इट मींस ये ABC इज ए राइट एंगल, सॉरी एंगल BAC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इधर जो पाइथागोरस थ्योरम है वो प्रूफ हो रही है, पर पाइथागोरस जो थ्योरम है वो कहां पे प्रूफ होती है, इन राइट एंगल ट्रायंगल में। आई होप आप लोगों को आज की क्लास क्लियर है। मैंने आपको 7 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे बता दिया है, 8 आपको सेल्फ सॉल्व करने के लिए दिया है, बाकी के क्वेश्चन भी अपन सेल्फ सॉल्व आउट करेंगे बट अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फर्स्टली मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि आप जो ये क्वेश्चंस है आप रफ नोटबुक में, देन आप फेयर नोटबुक में, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर और 9 चैप्टर में जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं चैप्टर के, आप उन्हें फेयर नोटबुक में कीजिए। सो आज की क्लास यहीं तक। In the next video, we discuss about another questions. Okay, have a good day.